about the budget that came yesterday. Okay, so there is a tendency whenever we talk about budget, we think something about the taxation, the impact of the budget on the market. Okay, how the industry is going to react on budget, what would be the impact of the budget. Okay, so these are the common things we, whenever we follow news in the newspapers, on social media outlets, so we look at the budget from this perspective. Okay, how this budget is going to revive the economy, how the market is going to react, how this stock market is going to react. Okay, how the small industries, the business outlets, the middle class, okay, going to react, and how this budget is going to impact on the different sectors of the economy. So that is how generally we look at the budget. And the government and the supporters of the governments, they look budget from a very different angle. Okay, for them it is a policy document, it is a vision document. Okay, generally over a period of time, particularly in the post liberalization period, when the government has adopted a very strict market policy in many sectors. Okay, so just to give impression to the public that we are really doing, we really care about you, the budget became a populist document. Okay, for me as a student of economics, it is not a policy document, it is not a visionary document or vision document, it is not a Panchavarshi Yojana, okay, or yearly plans. That is how the government present budget. Okay, not this government. There is a tendency, they present budget in a way that catch headlines, but in this strictly it is not a vision document, it is not a policy document. So what is budget? For me, budget is nothing but what is written in the article 112. Okay, so it is strictly, the budget is strictly what? The financial statement, nothing more, nothing less. Okay, it is not something where government announce a lot of things. Okay, but generally in last 20-30 years there is a tendency, each government wants to attract more and more attention. Okay, so this important financial statement, the budget, the term budget is not in the constitution, the term is that the annual financial statements. Okay, under article 112. Okay, so it should be treated, it should be read, we all pursue this budget document as something which is directed under article 112 in the Indian constitution. Okay, government may announce many things, government may say many things, to attract headlines, to appear very popular. Okay, so it is not this government, every government, even the commentator who comments on the budget, they look budget in terms of the announcements, what government is announcing, what are the new schemes government is introducing. Okay, but it should be looked as a, something like what is written in article 112, the financial statement, okay, annual financial statement. So that is how we should look at the budget. So that is about the economics. How you people should look at the budget, because you people are, not going to advise in future to the government, you are not going to take classes on this budget. Okay, so you people should look at the budget document from the exam point of view. Okay, so how we can look at the budget from exam point of view? Just pick terms. Okay, what is written in the budget, the term, the fiscal deficit, the annual estimate, the budget estimate, the revised estimates and all. Okay,
search about all these terms. Although I will try my best to discuss about all these terms, all possible terms, but economics is a very dynamic subject. Okay, what I read during my student years, okay, okay, so what I read during my student days, that concepts may not be applicable today. There are many things that government has, you know, is not following right now. Okay, and there are some changes in the definition, because all these definitions are standing definition. Okay, the standing definition means they subject to the changes. Okay, so I will try my best to discuss some of the basic terms, some static terms. Okay, and you people should cover the dynamic part. So it is always difficult from where to start. From tomorrow onwards, okay, I will discuss budget from your point of view, okay, from exam point of view. Okay, today I am discussing budget as a economist, as a student of economics. Okay, so it may appear that is not relevant for you. Okay, but today I am going to discuss my genuine feeling, how I looked this budget, and how I am looking all the government fiscal activities in the past 2, 3, 6 or 7 years. Okay, so there may be some casual comments, so bear all these things. Okay, the another important point is that the students who are sitting here and they are going to appear for the interview, my best wishes with them. But what I observed when I was sitting in the mock interviews, that when I ask the basic economic questions, okay, बिल्कुल बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड हु रिलीजेस जीडीपी डेटा इन इंडिया, कुछ भी नहीं पता. 5 बच्चों ने आंसर दिया कि इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक इकोनॉमिक विंग होती है, वो जीडीपी का डेटा रिलीज करती है. तो जो बच्चे, द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, directly whatever I am going to teach here today, discuss not the teaching, whatever I am going to discuss today, they will not ask you directly. आपको अपना दिमाग दौड़ाना है कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, या उसकी कुछ अल्टरनेटिव, जैसे मेरा मानना है कि बढ़ना चाहिए. तो यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, वो आपको जोड़ना है कि वहां क्या आंसर देना है. फॉर एग्जाम्पल, एक दिन इंटरव्यू की क्लास में मैंने एकदम जोश में कह दिया था कि कलेक्टर को, हालांकि उसमें कलेक्टर नहीं एसडीएम का प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर एक्ट में जब कलेक्टर के हाथ में सारे वो दे दिए तो वो कैसे लोगों के बीच इंसाफ करेगा. या फिर मैंने एक दिन कह दिया था कि जो एमएसपी क्यों नहीं फिक्स हो सकता जब पे कमीशन जो है सैलरी फिक्स करता है. कुछ बच्चों ने डायरेक्ट इंटरव्यू में एज इट इज आंसर दे दिया. ऐसे नहीं कहना है, आपको रूड नहीं होना है, ठीक है. मैं बोलता हूँ मेरे पर्सनल विचार हो सकते हैं, आपको फिल्टर करना है, ठीक है. जिनके बारे में आप कह रहे हैं पे कमीशन जिनकी सैलरी डिसाइड करता है, वो सारे इंटरव्यू लेने वाले सरकारी प्रोफेसर ही हैं, ठीक है. तो उनको आप ऐसे ताना मत मारो, ठीक. तो टुडे वी विल लुक एट द बजट, what is as I discussed about article 112, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के पटल पर अनुच्छेद 112 के अंतर जो है हर साल अपना वार्षिक लेखा जोखा रखना है. ये बजट है. बजट वो नहीं जो अखबार में आता है, ठीक है. बजट वो नहीं जो मीडिया में आता है. मीडिया वालों ने कल इतनी तारीफ की बजट की कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर को लगा कह रहे इतना तो मैंने दिया ही नहीं था, ठीक है. बजट वो भी नहीं है जो कॉरपोरेट, जितने भी कॉरपोरेट के मैं फॉलो कर रहा हूं पिछले 10-12 साल से, वो हमेशा बजट की तारीफ करते हैं. लैंडमार्क है, माइलस्टोन, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाला बजट आया है. वो हर साल रटे रटाए स्टेटमेंट्स देते हैं. बजट वो नहीं. बजट क्या है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 में लिखा, वो बजट है और हमें वही पढ़ना है. So you can see here
देर आर वेरियस टर्म्स. अब ये लैपटॉप यहाँ होता तो मैं उसको ऑपरेट कर लेता. ओके, देर आर वेरियस टर्म्स. ओके, यही लेखा जोखा है जो आपको साल भर में क्या किया, सरकार ने कहाँ से पैसा लाई, वो कहाँ उसको खर्च किया, वही आपको बताना है. That is what the budget. Okay, so there are some terms like revenue receipts, capital receipts, total receipts, total expenditure. Okay, then effective capital expenditure. उसके नीचे जनरली रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिर उसके नीचे फिस्कल डेफिसिट आता है, फिर उसके नीचे जो है प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिर उसके नीचे जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट्स आता है. So we have to discuss about all these terms. Okay, so we should understand budget. What is, you know, there are two parts. That is what the budget. Okay, even your household budget. Okay, from where you are getting money and where you are spending money, that is the budget. Okay, your personal budget. Okay, your household budget. If you are a head of the household, so what is your personal budget? Okay, it means that from where you are getting money and where you are spending. So the difference between these terms is called the deficit. Okay, so today we try our best to comprehend many terms related to these things. This is the budget. Okay, budget is not something big deal, although there are difference between the household budget and the budget of the government. Okay, what is the difference? What is the difference between both these terms? The household budget and the fiscal budget, the budget of the government. क्या अंतर होता है दोनों में? हाउसहोल्ड बजट में इनकम के अकॉर्डिंग वो. वेरी गुड. हाउसहोल्ड बजट में या पर्सनल बजट में हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है और अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको खर्चा करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अपने खर्चा देखती है, फिर उसकी इनकम के सोर्स वो ढूंढती है, चाहे वो टैक्स से ढूंढे, नॉन टैक्स से ढूंढे, कर्जा ले, नोट छपवाए, वो अलग मैटर है. ठीक है, सरकार पहले एक मोटा मोटा, इसी को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है. पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है, फिस्कल पॉलिसी यही है. पहले आप अपने एक आकार बनाते हो, एक बड़ा साइज डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च आएगा. अब कितना खर्च दो तरीके से आप जोड़ सकते हो. एक तो लास्ट ईयर कितना आया था, ठीक है, और आप कोई नई चीज अगर उसको लॉन्च करने वाले हो या उसकी कोई कॉस्ट बन गई है, बढ़ गई है. आपने जब लॉन्च किया था ब्रिज या मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसकी कॉस्ट 500 करोड़ रुपए थी. अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, तो आप उसको डिसाइड करते हो कि नहीं, अब उसको मुझे पूरा करने के लिए इतना लगता है. जहां आप चाहते हो कट करना है, एक लिमिट बनाते हो. ऐसा नहीं कि आपने खर्चे सारे लिख लिए, एक लिमिट बनाते हो कि इस साल जो है मुझे इससे ज्यादा जो है घाटा नहीं उठाना है. जनरली हम उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. उस बजट के अंदर आप करते हो. फिर आप अपनी इनकम के सोर्सेज देखते हो. पर्सनल हाउस होल्ड बजट में हम क्या करते हैं, पहले हम हमारी आय देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम खर्चा करते हैं. हालांकि इतनी वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं है. आजकल हम भी जो है पूरा अपना पर्सनल फाइनेंस जो है उससे चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड से. रिसिप्ट से होती है, एक्सपेंडिचर होता है. रिसिप्ट जो है वो दो तरह की हो सकती है. पहली रेवेन्यू, सेकंड कैपिटल. क्लियर? Similarly, there are two types of expenditure: revenue and capital. क्या मतलब होता है कैपिटल का इकोनॉमिक्स में? सॉरी, बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो. भूमि, श्रम,
नहीं, ये तो सही बोल रहे हो, ये जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। सर कैपिटल वो है, कैपिटल आय जो है जो हमारे एसेट से आय होती है। नहीं, मैं कैपिटल आई का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कैपिटल क्या होता है। यस प्लीज। जो हमारी एसेट सोर्स ऑफ इनकम है, सॉरी, एसेट का निर्माण जो भी हमारे हाँ, ये डेफिनेशन है कैपिटल की। इकोनॉमिक्स में जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम ये कैपिटल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। आजकल हम उसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ते हैं। हम बोलते हैं कि 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जनरली मेनली 3 होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। हर वो चीज कैपिटल है, एज ही राइटली सेड, जिससे कोई नई चीज बन जाए, वो कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लासरूम में कितनी कैपिटल रखी हुई है? कई सारी है। ये प्रोजेक्टर, ये चेयर, ये सब, इससे हम किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? सेवा का। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, ये क्या हो गई? सेवा हो गई। इसी तरह से किसी भी प्लांट में जितनी भी मशीनरी रखी हुई है वो सब कैपिटल हो गई। ठीक, बनाते हैं वो कैपिटल हो गई। ओके, सो नाउ रेवेन्यू, कैपिटल in terms of the receipts, revenue and capital in terms of the expenditure. Now there are two parts of the revenue. अच्छा, revenue और capital में क्या अंतर है? यहाँ पर क्या अंतर है, कोई बताएगा? फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट्स ले लो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट में अंतर बताओ। कोई बच्चा जो इंटरव्यू दे रहा हो वो बताए, बताओ। हाँ, यस। सर रेवेन्यू रिसिप्ट से वो होता है कि जो हम लोन ले रहे हैं या कुछ भी, मतलब जो हमें एसेट से प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारी पूंजी, जैसे हमने किसी से लोन लिया या किसी ने हमें उधार दिया। चलिए, ये एक पार्ट हो गया कि हमने हमारा जो है विदाउट सेलिंग आवर एसेट व्हाट एवर वी आर गेटिंग, इट्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन ये मेन हिस्सा नहीं है। सर जैसे कर प्राप्ति होती तो वो रेवेन्यू, ये एग्जाम्पल हो गया। और कैपिटल में जैसे कि हम हमारा लैंड, उससे जो प्रॉफिट होता है उसमें जो ये सब एग्जाम्पल हो। अगर आपसे कोई पूछे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, आप कैसे बताओगे? सर जो टाइमली अपन को रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करती है, कैपिटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना, ये कोई स्टैंडिंग, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, आप एग्जाम्पल बता रहे हो। अगर मुझे अंतर करना हो, बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट के अंदर रखना हो कि ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, बिना अपने एसेट्स कम किए जो हमें आय ये प्राप्त एक एग्जाम्पल हो गया। यस प्लीज। सरकार की देयता उत्पन्न नहीं होती वो रेवेन्यू। एग्जैक्टली, इस पर सरकार को कोई लाइबिलिटी नहीं आती हो, मतलब उसके बदले में कुछ लौटाना नहीं है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। और सेकंड, कि जो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट से ना हो, हमने हमारा कोई असेट, हमने मतलब गवर्नमेंट ने कोई असेट ना बेचा हो, जैसे इन्होंने सही कहा, वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि जिसकी कोई लाइबिलिटी ना हो, सरकार पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या हो गई? हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, अब उसी से आ जाओ आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जिसमें हमें कोई भी वो कैपिटल हमारा बन नहीं रहा है या asset जिसमें हमारा कोई कैपिटल का निर्माण नहीं हो रहा हो, कोई नई चीज बन नहीं रही हो, रोज आप जो है कंज्यूम करते हो घर में, वो आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल रेवेन्यू रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर क्या क्या है? आप सैलरी देते हो। जितने भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, जो आपकी चीजें चल रही हैं, आप उसको जो डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हो और कोई उससे नया निर्माण नहीं होता, वो चीज आपकी क्या कहलाती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दो तरह की चीजें हो गई। रिसिप्ट्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो सारी इनकम गवर्नमेंट की जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनी हो, सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने 50 रुपए दे दिए और सरकार के पास जाके बोल रहे हैं कि ब्रिज तो बना नहीं, मैंने पैसे दिए थे। कोई लाइबिलिटी नहीं है सरकार की। ठीक है, वो तो सरकार ने ले ली, और वो कैसे ली? दो तरीके से ले सकती है गवर्नमेंट रेवेन्यू को। There are two types of revenue. First one is the tax revenue and the second one is the non-tax revenue. टैक्स की क्या डेफिनेशन? दो पार्ट टैक्स के जरूरी हैं। पहला, वो कंपलसरी होगा,
द कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, वो कंपल्सरी होगा, वो क्या कहलाता है? टैक्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट टैक्स का है जिसके बदले में कोई लाभ की गारंटी ना हो, वो टैक्स है। अगर सरकार आपसे वादा कर ले कि मैं 50 रुपए के बदले में ये दूंगी या सरकार देगी, तो वो क्या, वो टैक्स नहीं है, फिर वो टैक्स नहीं है। आपने 250 का पैकेज ले लिया बीएसएनएल से, वो टैक्स नहीं है, ठीक है। या आपने कोई फीस दे दी सरकार को, 5,000 रुपए का आपने कोई खरीद लिया गवर्नमेंट इंटरप्राइज से या गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो टैक्स नहीं है। टैक्स में दो चीजें शामिल है, वो कंपल्सरी होता है, मना नहीं कर सकते। द कंपल्सरली लाइबिलिटी, आप मना कर ही नहीं सकते, वो टैक्स है, ठीक है। सेकंड, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्स का कि उसके बदले में सरकार कुछ देगी, इसकी गारंटी नहीं है। कोई पूछे आपसे टैक्स क्या है, तो टैक्स वो कंपल्सरी लाइबिलिटी है जिसके बदले में सरकार आपको कुछ देने का वादा नहीं करती, ये टैक्स है, ठीक है। नॉन टैक्स क्या है? जिसके बदले में आपको जो है, आप किसी स्पेसिफिक सेवा, सर्विस या गुड्स के बदले में आप देते हो। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो चार्जेस हैं, फीस है। आप किसी कॉलेज में गए पढ़ने, आपने 5,000 रुपए दे दिए सरकार को, उसके बदले में आप गारंटी लोगे, वो आपकी फीस है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वो क्या चीज है? वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अब आप आ जाइए, टैक्स रेवेन्यू भी दो तरीके से हो सकती है। There are two types of taxes. बताइए क्या अंतर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में? एग्जैक्टली। टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? एज शी राइटली सेड, डायरेक्ट टैक्स वो है जिसका बर्डन, जो मॉनेटरी बर्डन आप पर है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने मुझसे कहा कि आपको इनकम टैक्स देना है, क्लियर है, मैं ये नहीं कह सकता इनसे ले लो। वो जो मॉनेटरी बर्डन मुझ पे पड़ा, मैं किसी और पर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये डायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बातें आपको इसलिए सिखा रहा हूं, हो सकता है ये सारी बातें आपको पता हो, लेकिन ऐसे आंसर दिया करो। इंटरव्यू में भी मैंने देखा, यहां घुमा रहे हैं, वहां घुमा रहे हैं, अरे वो तो वो होता है, ये एग्जैक्ट एक लाइन में आंसर। डायरेक्ट टैक्स क्या? ऐसा टैक्स जिसका जो है मॉनेटरी बर्डन जो है आप किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट टैक्स है। सिमिलरली, एज आई डिस्कस्ड, व्हाट इज द टैक्स रेवेन्यू? जो टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी लायबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। और दूसरा उसका एलिमेंट है जिसके बदले में सरकार कोई वादा, ये जो टैक्स अथॉरिटी है, इस देश में बहुत सारी टैक्स अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आपकी लोकल बॉडीज होती है, उसको भी टैक्स लगाने का अधिकार होता है। आप कंटोनमेंट बोर्ड में जाएंगे, आप वहां से पास करेंगे तो वहां भी वो टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे टैक्स क्या, तो टैक्स वो है जिसके बदले में सरकार जो है कोई चीज देने की वादा नहीं करती, तो कंपल्सरी होती है। अगर आपने नहीं दिया तो वो क्या कहलाता है? टैक्स की चोरी करना, ठीक है, टैक्स इवेजन बोलते हैं उसको। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसकी आप जो है मॉनेटरी, आप पे जो बर्डन आया है वो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सबसे फेमस जो है डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स। दोनों ही फेमस है। पर्सनल इनकम टैक्स, ये इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। अब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 5 टैक्सेस के नाम बताइए जो डायरेक्ट टैक्सेस हो, बताइए, बताओ। वो तो मैंने ही बता दिए दो, तो पर्सनल इनकम और कॉर्पोरेट। कोई नया बोलो। एग्जैक्टली, गुड, है ना, उसको अंग्रेजी में हम वेल्थ टैक्स बोलते हैं। और
3 हो गए, 2 और बताइए। अरे ऐसे आंसर दिया कीजिए छोटी बातों के। तो सर एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स को बोलते हैं। जीएसटी डायरेक्ट कैसे हो गया? हाँ, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कैसे हो गया? सर जीएसटी तो जिसको लगता है वही देता है ना सर। जीएसटी तो जिसको लगता है वही देता है ना। नहीं सर नगर पालिका के जो कर रहे हैं। नहीं, देखो मैं सुनाता हूँ आपको, ये लिख लो चलो आप लोग। वैसे तो ये आंसर आपको पता होना था। पीआई पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। थोड़ा सा यहाँ एक टर्मिनोलॉजी की वजह से कंफ्यूजन करते हैं बच्चे इसको, चूंकि हिंदी में निगम कर कहते हैं। निगम का मतलब द कॉर्पोरेशन, निगम का मतलब नगर निगम नहीं है। कई वैसे नहीं करते हैं बच्चे, मैंने देखा है कई बार। इसको अदरवाइज मत लेना, बुरा मत मानना मेरी बातों का। पीआई पर्सनल इनकम, देन कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स एज शी राइटली सेड, संपदा कर इसको बोलते हैं हम, वेल्थ टैक्स। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है वो है कैपिटल गेन टैक्स। रातों रात जो आप लोग अमीर हो जाते हो अपने शेयर बेचने से या ऐसी कोई चीज बेचते हो कि 500 करोड़ की चीज 1000 करोड़ में बेच दी, सरकार की उस पर नजर होती है। किसी भी चीज से मार्केट में उछाल आ गया, एकदम आपका कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट की उस पर नजर है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन टैक्स। डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड क्या होता है? हाँ कंपनी अपने लाभ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सब सुन ले। ये बता रहे हैं डिविडेंड क्या होता है, बताइए। सर कंपनी अपने लाभ को, सबको बताइए, मुझे नहीं, जोर से। सर कंपनी अपने लाभ को जो प्रॉफिट को सब में डिवाइड कर देती है, जैसे कोई शेयर वगैरह खरीदते हैं तो वो डिविडेंड टैक्स। ओके, तो उसको जो डिविडेंड बढ़ता है फिर उस पर भी टैक्स लगता है, उसको डिविडेंड टैक्स कहते हैं। एक होता है इंटरेस्ट टैक्स। आप ये मत सोचिएगा कि आपने 1 करोड़ रुपए कमा के बैंक में रख लिए और आप इंटरेस्ट कमाते रहे, ठीक है, उस इंटरेस्ट अर्निंग पे भी टैक्स है, ठीक है। अब कितना लगेगा वो आपको किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो 80 के अंदर उसको इनकम टैक्स की उसमें छूट भी रहती है, ठीक है। ये हो गए डायरेक्ट टैक्सेस। नॉन डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, ठीक है। नॉन डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जीएसटी। और कोई नॉन डायरेक्ट टैक्स? अब तो जैसे सारे जीएसटी की नेट में आ गए, लेकिन फिर भी नॉन डायरेक्ट टैक्स जो है काफी अभी बाहर हैं जीएसटी की। एक सबसे बड़ा टैक्स जो जीएसटी से बाहर है और जो हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं आजकल, बताओ। ऐसे रेंडमली आंसर मत दो, कोई पहेली नहीं खेल रहे हैं अपन यहाँ। आप बिल्कुल सोच के बताओ। मैंने कितनी हिंट दी कि आजकल जो हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, परेशान है जिसकी वजह से पेट्रोल पे, डीजल पे जो हम टैक्स देते हैं वो अभी जो है उसकी जीएसटी की नेट से बाहर है। डू यू नो हम कितना टैक्स दे रहे हैं आजकल पेट्रोल डीजल पर? उसमें 2 तरह के टैक्स होते हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो 3 तरह के टैक्स होते हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है हमसे, है ना, सेंट्रल जैसे कोई वर्ड है नहीं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो ले लेती है, फिर उस पर वो क्या लगाती है? सेस लगाती है। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर टैक्स ले लेती है। और उस पर जुल्म ये है कि पहले वो 2 लगा लेगी, कौन? यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगा लेगी। फॉर एग्जांपल आजकल टैक्स जो है 30 से 35 रुपए के आसपास टैक्स चल रहा है, पता है आपको? आप जो कॉस्ट जो पे करते हैं पेट्रोल का, डीजल का, उसमें 30 से 35 रुपए जो है यूनियन गवर्नमेंट ले लेती है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो 30 रुपए है, यूनियन गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया 30 रुपए, 5 रुपए वो मिला लो, कितने 65 रुपये हो गए। जो सेलर है, पेट्रोल पंप का ओनर है, उसने अपना मार्जिन लगा लिया, ठीक है, और जो प्रोडक्शन कंपनी थी उसका भी प्रॉफिट जुड़ गया। अब इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है,
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बेस पे टैक्स नहीं लगाती, पहले सब जुड़ जाएगा फिर टैक्स लगेगा, तो वो टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है, वो अभी भी टैक्स ऑन टैक्स है। तभी तो आपको 108 रुपए देना पड़ रहे हैं पेट्रोल पंप पे, इतने लोग उसमें शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। ठीक है, जनरली इनडायरेक्ट टैक्स भी कई टाइप्स के होते हैं। जनरली 2 टाइप के हम टैक्स को हमें देखने को मिलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बताओ कौन कौन से? एक होता है एड वॉलरम टैक्स और दूसरा होता है स्पेसिफिक टैक्स। ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप्स हैं, ठीक है। एड वॉलरम जो वैल्यू के अकॉर्डिंग लगे, अगर आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी तो वो टैक्स इस हिसाब से लगाया गया कि चूंकि ये 50 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, जो उसको हिंदी में बोलेंगे वस्तु के मूल्य के आधार पर जो लगे, जो वैल्यू उसमें जितना मूल्य है, हालांकि वैल्यू का मतलब मूल्य नहीं होता, काफी चीजें उसमें बहुत इकोनॉमिक शामिल है। फॉर एग्जाम्पल ये 50 रुपए की चीज है तो इसके जो प्राइस है उसके आधार पर जो टैक्स लगा उसको हम बोलते हैं एड वॉलरम, ठीक है। एक टैक्स होता है स्पेसिफिक टैक्स जो कि क्वांटिटी के आधार पे लगता है ना। 5 किलो खरीदने पे इतना % देना होगा, उसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है। 1 क्विंटल पे इतना टैक्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स, ठीक है। जनरली आप जैसे बॉर्डर पे या इस तरह से कोई चीज आती है तो आप क्या करते हो, उसकी प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशंस आता रहे, आप उसकी मात्रा के आधार पे लगाते हो। 1 किलो खरीदने पे इतना टैक्स देना, ठीक है। ऑब्वियसली ये टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है, इसमें रटने की भी कोई जरूरत नहीं, कैसे दिमाग में चार्ट बना के रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी इनकम की तो कोई मात्रा के आधार पे होगी नहीं कि 1 किलो इनकम कमाने पे, ठीक है। मात्रा के आधार पर जो है लग गया टैक्स क्वांटिटी के आधार पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो स्पेसिफिक टैक्स हो गया और ऑब्वियसली वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। इनकम और कॉर्पोरेट आय जो आपके प्रॉफिट्स जो करते हैं अर्न, उसको तो आप तोल नहीं सकते, तो ये सब चीजें रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स का टाइप नहीं है, उसमें स्पेसिफिक टैक्स लिखा रहे, तो वो वहां रट्टा करने की जरूरत नहीं, आपको सोचना चाहिए कि उसकी स्टैंडिंग डेफिनेशन क्या है, उससे समझ क्या है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्स, जो मात्रा के आधार पर लगे। थोड़ी सी हम और 2-4 टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं फिर बढ़ेंगे इसकी तरफ। आ जाइए अब टैक्सेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक टैक्सेशन होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेशन पढ़ा किसी ने? रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और तीसरा होता है प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन। अब इसको सिर्फ रटना नहीं है, अगर मैं किसी से पूछूं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि कौन सा टैक्स सबसे अच्छा, नहीं ऐसा मैंने पूछा नहीं, अगर पूछा जाए तो आप अच्छे से सोच के जवाब देना, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब ये अच्छा माना जाता है बुरा माना जाता है, ये वैल्यू जजमेंट हो गया, है ना। किसी की राय अलग हो सकती है, कोई मार्केट चैंपियन ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स हो, कैपिटलिस्ट हो, तो उसकी सोच अलग होगी, ठीक है। आप है ना किस पोजीशन में है, आपकी सोच क्या है, लेकिन जनरली चूंकि हम एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना करते हैं, कहाँ करते हैं हम वेलफेयर स्टेट की संकल्पना? हाँ, गुड, ठीक है। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? हर चीज का एक बेस होता है, हर टैक्स जो है
किसी बेस पर लगाया जाता है। आपको पता है हर टैक्स का एक बेस होता है। जैसे इनकम टैक्स का बेस इनकम है, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स का बेस प्रोडक्शन है, ठीक है, एक चीज का बेस होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल इनकम टैक्स का बेस क्या है, इनकम है। ये हो गया रिग्रेसिव, अगर मैं इधर टैक्स का कलेक्शन ले लूं तो, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, स्लैब्स बढ़ती है, तो उनसे कम टैक्स लिया जाता है। और अगर आप बिल्कुल ही गरीब हैं तो आपसे टैक्स जो है, ये टैक्स की रेट हो गई इधर वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर अगर मैंने इनकम ले ली तो जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ती है टैक्स की रेट कम होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। ऐसा टैक्सेशन होता है क्या, क्यों इस तरह के टैक्सेशन की डिजाइन क्यों है? जो कंट्री अगर ये चाहती है कि जो उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उसके एंटरप्रेन्योर हैं, जो इनकम कमाते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं, हम उनको इनकरेज करें, तो इस तरह का टैक्सेशन लाया जाता है। अगर सरकार ये चाहे कि जो हाई इनकम लोग हैं वो उनको हम इनकरेज करें, ताकि जो है उनके पास एक बड़ा अमाउंट बच जाए, है ना, उनके पास एक बड़ी इनकम जो है आफ्टर टैक्स, उनके पास एक बड़ा इनकम बच जाए, ताकि फिर वो इन्वेस्ट करें। अगर सरकार इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना चाहती है तो इस तरह का टैक्सेशन होता है। हालांकि सब किताबी बातें हैं, ठीक है। आपने कॉर्पोरेट इनकम में टैक्स में अगर छूट दे दी, जरूरी नहीं है कि वो उद्योगपति जो है उसको इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसका। ऐसा देखा गया है इंडिया में भी और यूएस में भी पिछले पेंडेमिक के दौरान। तो जनरली ऐसा जब इस तरह की चीजें आती है, जैसे कि दूसरा आता है प्रोग्रेसिव, इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जो है टैक्स के रेट जो है बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी अगर टैक्स के रेट बढ़ेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एक होता है प्रोपोर्शनेट, जैसा इन्होंने कहा प्रोपोर्शनेट टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स बेस। यहाँ मेरे एग्जांपल में जो टैक्स का बेस है वो इनकम है। कई हर टैक्स का बेस अलग होता है, टैक्स लगता ही बेस पर है ना। इस एग्जांपल में चूंकि मैं इनकम की बात कर रहा हूं, प्रोपोर्शनेट टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, आपको 10% सरकार ने लगा दिया। अब 100 रुपए कमाते हो तो भी 10 रुपए दो, 1 लाख कमाते हो तो भी 10 रुपए दो, 1 करोड़ कमाते हो तो भी 10% दो, 10 रुपए 10% आपको देने हैं, ठीक है। 10% अगर सरकार ने टैक्स लगा दिया, मतलब आपकी इनकम के प्रपोर्शन में, आप 1 लाख कमाएंगे तो उसका प्रपोर्शन आपको पे करना है, 10,000 रुपए कमाते हैं आपको उसका प्रपोर्शन पे करना है। समझ रहे हैं आप, प्रपोर्शन का मतलब होता है अनुपातिक। 1 लाख कमाए तो 10% दे दीजिए, 1 करोड़ कमाए तो 10% दे दीजिए। अब ऑटोमेटिकली चूंकि परसेंटेज में बात है, अब 1 करोड़ रुपए वाला ज्यादा टैक्स देगा, उसका जो लमसम पेमेंट होगा वो 1 करोड़ का 10% देगा। 1 लाख वाला अपना 1 लाख का 10% देगा, उसका प्रपोर्शन कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन इसमें मार्जिनल सेक्रीफाइस उस कम इनकम वाले का ज्यादा होगा कि उसने 10,000 रुपए कमाए और 10% सरकार को दे दिया, उसका मार्जिनल सेक्रीफाइस ज्यादा है, ठीक है, बजाय उसके जो अमीर है। तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। अब हमारे इंडिया में क्या फॉलो होता है, हमारे इंडिया में जनरली अगर हम टैक्स की स्लैब को देखें तो आपको मिक्स मिलेगा कि एक रेट तक जो है 30% तक तो प्रोग्रेसिव है, उसके बाद वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। कि एक लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो अबाउट द करंट स्लैब, हाईएस्ट के ऊपर वो प्रोपोर्शनेट हो जाता है। देखते हैं ना आप कि इतने करोड़ से जिसकी ऊपर आए है उसको 30% देना है। अब वो 1 करोड़ से 1 लाख रुपए भी ऊपर हो या 1 करोड़ से वो 10 करोड़ रुपए भी कमाता हो, सब पे 30%, ठीक है। आप देखेंगे वो ऐसा हो जाता है, एक लेवल तक तो ऐसा चलेगा फिर ऐसा हो जाएगा,
ठीक है, यहां तक प्रोग्रेसिव है, फिर प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है, ये वो करोड़ वाली जो बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद कितने भी करोड़ कमाइए आप जो है 30% जो है टैक्स जो है सरकार को दे दो। ऐसा देखा गया है कई सरकारों में। फ्रांस का बहुत बड़ा उदाहरण है कि वहां इनकम टैक्स पे इतना टैक्स लगा दिया कि लोग जो है पलायन कर गए। कहाँ? अमेरिका। जब आप इतना टैक्स लगाओगे तो आपकी जो एक बड़ी रिच पॉपुलेशन है वो माइग्रेट करना शुरू हो जाएगी। 10 करोड़ कमाए और 3 करोड़ सरकार ले गई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टैक्सेशन भी जो है वो डिस्करेज करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और जो सोशलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो है टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होना चाहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए वैसे वैसे टैक्स लो, इन अमीरों से टैक्स लिया करो। ठीक है, कहते हैं ना वो, इन पर रिच जितने भी हैं, ऑक्सफॉर्म इंडिया की रिपोर्ट आई कि जितने भी सुपर रिच हैं इन सबसे टैक्स लो और जो है पुअर और उस पर खर्च करो मिडिल क्लास पे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, समझ में आए या नहीं आए मुझे ऐसे घुर के मत देखो, वो आपका मैटर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। तो ये सारी टर्म्स जो है मैंने अभी तक आपको जो है वो टैक्सेशन की समझा दी, बेसिक और एकदम वन लाइन पंच डेफिनेशन। इंटरव्यू में भी अगर पूछे तो ऐसे ही बोला करो, सर वो चुंगी, सर वो होता है, सर वो ये, ऐसा वहां पर मत किया करो। बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि आपको काफी लोग आप में से जो है टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट में ही जाने वाले हैं, सीटीओ वगैरह जो बनते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब वहां जाओगे इंटरव्यू देने तो वहां तो पोस्ट भी लिखी रहती है आपकी वरीयता क्रम में, वहां लिखा होता है जो लोग गए होंगे कि आपको क्या बनना है। तो अगर उसमें ये चीजें पूछ ली, उन्होंने टैक्सेशन पूछ लिया, तो वहां घुमाना नहीं है। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, 3 इसके उदाहरण दो, 4 उसके उदाहरण दो। ठीक है, रेवेन्यू में और कैपिटल में क्या अंतर होता है, बिल्कुल पंच लाइन होना चाहिए, और वो बिल्कुल ऐसी स्टैंडिंग डेफिनेशन हो जिससे अंतर किया जा सके कि हाँ इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर किया जा सके। तो ये सारी चीजें आई डिस्कस्ड अबाउट दी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, अब आप आ जाइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। ये तो हमने टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एड वॉलरम, स्पेसिफिक, ये सब टैक्सेशन हमने पढ़ा। अब सरकार खर्चा भी करती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाइए अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। As I asked when I started discussion about the budget, what is the revenue expenditure? So many people answered correctly, to operate and run government department and services. लोगों को तनख्वाहें देनी होती हैं, जो दिन भर के खर्चे हैं, जो बिजली का बिल है, वो सारे जितने भी खर्चे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, अब सरकार ने क्या करा, खूब अच्छा कर्जा ले लिया। ठीक है, अब उस कर्ज पे ब्याज भी तो देना है। वो ब्याज जो है आप जो पे करेगी जो सरकार, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ी टेक्निकल बात है। जो इंटरेस्ट पेमेंट पुराने लोन पे दिया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल में नहीं आएगा। क्यों है वो रेवेन्यू, अभी रटने की भी जरूरत नहीं है। रेवेन्यू का मतलब ये कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, आप जो खा गए। ठीक है, तो आपने जो पुराना कर्जा लिया वो खा गए। ठीक है, और अब जो है आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं, अब आपको रीपे करना है। ठीक है, तो आप उसका इंटरेस्ट पे करते हैं। एक ही छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, ये देखिए आप, अगर सरकार दिख रहा है 1 रुपया कमाती है तो 20 पैसा वो पुराना इंटरेस्ट देती है। देखिए आप, अगर सरकार ने 1 रुपया उसका अर्निंग है तो उसमें से 20 पैसा जो है वो हमारा ब्याज में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि कर्जा अच्छी बात नहीं है, बड़े बुजुर्ग सिखा गए कर्जा अच्छी बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कर्जा बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, बहुत जरूरी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग
बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको कितना करना, कैसे करना, किस मोड से करना, किस वे में करना, ये सब ही इकोनॉमिक्स है, ये सभी पब्लिक फाइनेंस है। इसके लिए पढ़े लिखे लोग होते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? स्ट्रगल विद द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो कम है, आपको उसके साथ स्ट्रगल करना है। इसीलिए तो फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये 5 प्रोफेसर की बॉडी, उसकी कमेटी, इसीलिए तो बिठाते हैं। उसका स्ट्रगल करना, इकोनॉमिक्स यही है। आपके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है, आपका एक खर्चा ज्यादा है, अब उसको स्ट्रगल करना। हाथ खड़े कर देना इकोनॉमिक्स नहीं है कि हम तो बस अब नहीं कर पाएंगे, बढ़ जाएगा घाटा, फिर ऐसा हो जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए ना, जाइए ना, स्ट्रगल कीजिए, ठीक है। कहाँ से लाना, कहाँ देना, बढ़ाना नहीं बढ़ाना, वो स्ट्रगल के लिए ही आपको अपॉइंट किया गया है। तनख्वाह ले रहे हो हेवी, ठीक है, जो भी हो, किसी पे कमेंट नहीं है। सो इंटरेस्ट पेमेंट जो है अर्लियर लोन्स पे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है सरकार का। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 रुपया कमाया तो 20 पैसा जो है आपने इंटरेस्ट में घटा दिया। इसीलिए जो है ये सस्टेनेबल फाइनेंस नहीं है। सस्टेनेबल फाइनेंस कैसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज 5 लाख करोड़ का लोन गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन उसको चुकाएगी, वो सरकार को टैक्स देगी, और सरकार वो टैक्स कहाँ दे देगी? ब्याज में। तो वो आज हमारे काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट आज टैक्स लेगी तो 20, 25, 30 सालों तक उसको लोन लेगी तो उसको चुकाती रहेगी। इसलिए इस जनरेशन ने कंज्यूम किया और नेक्स्ट जनरेशन उसका जो है भुगत रही है ना। ये कोई जैसे आप सस्टेनेबल उसमें भी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट में भी सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हमें ऐसी ग्रोथ करनी चाहिए कि आज अगर हमने सारे वो डिप्लीट कर दिए जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कम बचेगा रिसोर्सेस। इसी तरह से फाइनेंस भी ऐसा ही है। आप पढ़ते हैं ना पर्यावरण में कि हमें अगर हमने सारे रिसोर्सेस आज खत्म कर दिए तो आने वाली जनरेशन के लिए कम बचेगा। तो हमें कैसा चाहिए? सस्टेनेबल ग्रोथ करनी चाहिए। यही है सस्टेनेबल ग्रोथ। इसी तरह से सस्टेनेबल फाइनेंस भी यही है कि अगर हमने आज अगर सारा कर्जा ले लिया तो आने वाली जनरेशन को जो है इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा। अब ये जो सरकार पिछला इंटरेस्ट पे कर रही है, ये जरूरी नहीं है कि हमने लिया, ठीक है। पुराना जो लोन लिया था उस पर जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है और एक बड़ा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट 1 रुपया करती है तो 20 पैसा जो है उसका किस में चला जाता है? वो ब्याज में चला जाता है। क्लियर है? अच्छा, सरकार जो ग्रांट्स देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, तो 3 आप उसके एग्जाम्पल, चलो 3 एग्जाम्पल दो। तो पहला एग्जाम्पल, टू रन, टू ऑपरेट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, सर्विसेज, डे टू डे एक्टिविटीज, ओके, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू expenditure. The second, the interest payment on earlier loans, okay. The third, the grants to the state governments. ये सब किस चीज का पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमने पढ़ी, फिर उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट 2 तरह की, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स को भी 2 तरह के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी हमने देखा स्पेसिफिक टैक्स होता है, उसके टाइप्स हमने देखे, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने बताया, जो फीस देते हो आप, है ना, जो आप किसी सर्विस के बदले में जो शुल्क दे के आ जाते हो, वो आपका हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर मैंने बताया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू ऑपरेट एंड रन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सर्विसेज, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अर्लियर लोन्स, और ग्रांट्स जो सरकार, राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती हैं, वो भी रेवेन्यू हो गया। अब आप आ जाइए कैपिटल पे। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया?
जितनी अगर रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू से जो रिसिप्ट्स हैं माइनस आप कर दीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सेस में रेवेन्यू उससे, तो आपको उसको क्या कहते हैं हम, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। लेकिन अगर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो क्या कहेंगे, रेवेन्यू सरप्लस। और वो कहां जाएगा, वो पूंजी खाते में चला जाएगा कि वो कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा। अगर सरकार लक्की हुई, चलो इस साल तो ऐसा हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम था और रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा थी, अब जो बचा सरप्लस उससे आप अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करो। ठीक है, क्लियर है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आप पढ़ेंगे हमने जैसे पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहाँ से आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अच्छा, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट में मैंने अंतर बताया था। रेवेन्यू रिसिप्ट से कोई लायबिलिटी नहीं बनती, ना ही आपका कोई असेट सेल होता है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट आपकी जहां से भी आ रही है, ठीक है, या तो वो आपकी जो है लायबिलिटी बढ़ाएगी। लायबिलिटी कैसे बढ़ती है, कर्जा लेने से लायबिलिटी बढ़ जाती है। कर्जा लोगे आप या किसी से उधार लोगे या किसी से ग्रांट लोगे तो आपको जो चीज आपको लौटानी है उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसी होती है, जो लायबिलिटी बढ़ाती हो, या फिर आपने कोई असेट बेच दिया हो, या तो आपने कोई असेट बेच दिया हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिभाषा है असेट बेचने की, है ना, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सुन के लगे कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट ये है, आता है ना, हम पढ़ते हैं ना। ठीक है, या तो आपने अपने असेट बेचे हो, सरकार की कोई संपत्ति चली गई हो, वो सब कैपिटल रिसिप्ट हैं आपकी। ठीक है, एक मैंने बताया रेवेन्यू सरप्लस भी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। अगर आपके पास उधर रेवेन्यू सरप्लस रह गया तो आप इधर क्या करोगे, उसको कैपिटल उसमें डाल दोगे, ताकि आपके पास रेवेन्यू सरप्लस है तो आप क्या करोगे, चलो कुछ कैपिटल क्रिएशन किया जाए कंट्री में। ठीक है, स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, है ना, लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन होता है, हो सकता है सरकार ने भी किसी को दिया हो लोन, उसका अगर रीपेमेंट आ जाए तो वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है, वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेट है, आपने विदेश से लिया हो, या कोई ग्रांट आ गई हो, या कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था से जो फाइनेंशियल एड्स मिलती हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, वो भी इसी अकाउंट में आती है। अब ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम कितना ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इंडिया जनरली लेना बंद कर दिया है हमने, अब हम दूसरों को देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। अब आप खुद इसका एनालिसिस करें, जितनी मैंने बातें की, या तो ये लायबिलिटी बढ़ाएगी आपकी, या आपने किसी असेट को बेचा होगा, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब आप आ जाइए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जस्ट इसका उल्टा। पेमेंट ऑफ लोन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने जो लोन लिया था उसका जो पेमेंट कर दिया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरी जो जनरल सोशल इकोनॉमिक सर्विस जो सरकार चलाती है, जैसे ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ठीक, अच्छा ब्रिज और पुल, ट्रेन, रेलवे और इस तरह के जिससे असेट क्रिएशन हो, प्लांट्स लगाना जिससे असेट क्रिएशन हो। स्कूल की बिल्डिंग भी एक असेट है। ठीक है, हॉस्पिटल असेट है, मशीनरी असेट है, जो आपके डे टू डे कंजप्शन में नहीं जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 रुपये, अपने पर्सनल उस पर सोचो, या तो 1000 रुपये आप खा जाएंगे,
मैकडोनल्ड, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ये वो, या आप सोचते हैं कि इसको कहीं मैं इन्वेस्ट करके ये 1,000 रुपये ऐसी जगह लगाऊं जिससे कुछ रिटर्न आए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कितना सिंपल है। तो सरकार भी जिससे असेट का क्रिएशन हो, जिससे नई चीजें बने, जिससे फर्दर ग्रोथ हो, प्रोडक्शन सर्विस का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है बताइए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले 20-25 सालों में सरकारों का ये जोर रहा है कि एक्सपेंडिचर बुरा नहीं है, बशर्ते कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ताकि कुछ बने। तो जो खा के खत्म कर दिया वो तो कोई मायने नहीं रखता। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ये किताबी बातें हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है। फॉर एग्जांपल, सरकार ने सैलरी दी या फिर सरकार ने भत्ता बढ़ा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है मार्केट में आता है। फॉर एग्जांपल, जो सैलरी या अलावेंसेस आपके बढ़ा दिए, वो पैसा फिर मार्केट में आता है, आप खर्च करते हो और उससे भी इकोनॉमी रोटेट होती है। वो तो बिल्कुल डायरेक्ट वे हो गया इकोनॉमी को रिवाइव करने का। हालांकि इस पर बहस है कि कौन सा खर्चा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने पूरे सरकार ने जो है पूरी इकोनॉमी में, फॉर एग्जांपल 6 पे कमीशन से 7 पे कमीशन लागू कर दिया, एस्टिमेट आया कि 4.5 लाख करोड़ का सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब वो 4.5 लाख करोड़ रुपए जो लोगों के पॉकेट में जाएंगे, वो लोग खर्चा करेंगे मार्केट में, उससे इनकम बढ़ेगी, उससे डिमांड बढ़ेगी गुड्स से सर्विसेज की। दूसरा ये है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए सरकार लोगों को पॉकेट में एज ए सैलरी न बढ़ाते हुए असेट क्रिएशन पे लगाए, प्लांट्स पे, ब्रिजेस पे, रोड्स पे, रूरल इंफ्रा पर, स्कूल, हेल्थ इंफ्रा पर। अब इस पर बहस है कि वो ज्यादा असर करेगा या ये ज्यादा असर करेगा। अब ये ऐसी बहस इकोनॉमिक्स में रेंडमली नहीं होती, ये है सोशल साइंस का पार्ट, लेकिन उसकी एक मेथड होती है, मैथमेटिकली उसको आप मेजर कर सकते हो, रिसर्च होती है, मॉडलिंग होती है ना, चेंजेस देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है किसका ज्यादा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि इन बातों पे मेरा विश्वास थोड़ा कम है। मैं चाहता हूं कि सरकार जो है डायरेक्ट जो है लोगों को कैश दे, वो एक अलग बहस है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, समझ गए हम, ठीक है, क्लियर है। अब कैपिटल अकाउंट पे डेफिसिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट पे डेफिसिट क्या, अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड कर जाए, वो क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए आपकी कैपिटल रिसिप्ट से, तो वो कैपिटल अकाउंट पे डेफिसिट हो गया, ठीक है। एक हो गया रेवेन्यू अकाउंट पे। एज ए पॉलिसी मेकर अगर आप किसी कंट्री का दोनों देख रहे हो, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट, तो आप ये नहीं कहेंगे कि डेफिसिट बुरा होता है, आप देखेंगे कि हाँ चलिए कैपिटल अकाउंट पे जो डेफिसिट है वो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि उससे जो है आपने क्रिएट किया है, असेट का क्रिएशन हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये किताबी बात हो गई। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? अगर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट जो है शॉर्टेज है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। कैपिटल डेफिसिट क्या है? अगर आपकी कैपिटल रिसिप्ट जो है वो शॉर्टेज रह गई कैपिटल एक्सपेंडिचर से, वो कैपिटल डेफिसिट है, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू का आना और रेवेन्यू का खर्चा होना, कैपिटल का आना और कैपिटल का खर्चा होना, यही बजट है। मैंने यहीं से बात शुरू की थी। बजट क्या है? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब बताओ बजटरी घाटा क्या है? ये बजट है, तो बजटरी घाटा डेफिसिट क्या है? बजटरी डेफिसिट बताओ। सिंपल, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को इस
एंगल से आप परस्यू करना सीखिए, ठीक है। हर एक चीज की एक मार्क होता है, ये इकोनॉमिक्स से है, सोशल साइंस में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी रेंडमली नहीं है, एक हर चीज की एक स्पेसिफाइड है, बहुत ज्यादा उसको मैथमेटिकली हर चीज को आप प्रूव भी करते हैं, ठीक है। अब सरकार बजटरी डेफिसिट को कहां से पूरा करती है? हाँ जी, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे या कैपिटल में? वो टाइप पर डिपेंड करेगा, मतलब दोनों में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा तो हाँ, वो किस चीज को क्रिएट करने में आप लगा रहे हैं। सिमिलरली जो ग्रांट दी जाती है स्टेट को, उसका भी एक्सपेंडिचर क्लासिफाई किया जाता है, जो वो ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल उसमें लगाई या उसमें, ठीक है। अब बजटरी डेफिसिट सरकार कहां से पूरा करती है? सॉरी, आरबीआई से क्या लेती है? आरबीआई से सरकार लोन लेती है तो आरबीआई दे देता होगा, क्या ये सरकार है? बॉन्ड भी इशू करती है। पहले ऐसा होता था कि सरकार जो है मनचाहा चीज़ें ले लिया करती थी, लेकिन बाद में थोड़ी समझ आई, 1991 क्राइसिस का एक बड़ा पार्ट जो है फिस्कल डेफिसिट की वजह से था, ठीक है। कि अब ऐसा नहीं होगा कि मनमाना कुछ पे लिमिट लगाई जाए, तो जनरली 3 महीने के लिए जो है एडहॉक, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल, 3 महीने के लिए जो है सरकार आरबीआई से लेती है, ठीक है। फिर उसको आप फिर करिए, फिर लीजिए, वो एक पूरा उसका मैकेनिज्म है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। उसी को हम बोलते हैं कि वो एडहॉक ट्रेजरी बिल है, ठीक है। लेकिन सरकार का जो है वहाँ सरप्लस भी होता है, आरबीआई के पास सरप्लस भी होता है आरबीआई के पास, तो सरकार उसको जो है उसको नगद को ले सकती है, उसको हम कहते हैं नगद निकासी कर ली सरकार ने। जनरली ऐसा देखा गया कि इस तरह से होता नहीं है, वो जनरली आप उसको जीरो पाएंगे। अभी बीच में ऐसी खूब उठी थी कि आरबीआई से सरकार ने पैसा ले लिया, और जो कभी नहीं लिया गया, वो डिबेट इसी के कंटेक्स्ट में थी, ठीक है। अब आप आ जाइए फिस्कल डेफिसिट। 1991 के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो वो इस कंसेप्ट को उन्होंने जोड़ दिया कि फिस्कल डेफिसिट पे फोकस किया जाए बजाय केवल बजटरी डेफिसिट के, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में सारी बोरोइंग, सारी लायबिलिटी आती है, जिसमें जैसे आप मैंने पूछा तो आप आंसर दे रहे थे, वो फिस्कल डेफिसिट का आंसर था कि इंटरनल जितनी भी बोरोइंग्स हैं जो सरकार ने ली हैं, जो लौटानी है, एक साल में आप सब जोड़ लो, इंटरनल बोरोइंग्स कितनी है, फॉरेन जो आपने लिया है वो कितना है, आरबीआई से लोन्स कितना है, मतलब एक ईयर में जितनी भी सरकार ने लायबिलिटी जनरेट की है, जितनी भी सरकार ने उधारी ली है, वो है फिस्कल डेफिसिट। सारा सब जोड़ लेंगे एक ईयर में, तो वो आपका फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्चुअली बताता है सरकार घाटे में है या फायदे में है। फायदे में तो हमने देखी नहीं कभी, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो घाटे की ही अर्थव्यवस्था पे चलती है, और चलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको असेट क्रिएट करना है कंट्री में, तो विदाउट डेफिसिट तो आप कर नहीं सकते। और डेफिसिट अच्छी चीज समझी जाती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बशर्ते कि वो कंट्रोल में रहे। डेफिसिट अच्छी चीज है, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट पे हो, ठीक है। अगर आपने देखा कॉर्पोरेट में कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, 7-8% की ग्रोथ अच्छी चल रही है, जैसे आप देखेंगे 2007, 8, 9 के आसपास, तो आप क्या करते हो, बैंक से लोन लेते हैं इस एंटिसिपेशन में कि हाँ ये ग्रोथ अच्छी जाएगी, आज लोन ले लेते हैं, नए प्लांट लगाते हैं, 2G 3G का लाइसेंस ले लेते हैं, कोल की खदानें ले लेते हैं, ताकि जो है आगे हम प्रॉफिट अर्न करें। लेकिन आप पाते हैं कि 2012-13 तक आते आते
आपकी इकोनॉमी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है, एक रिसेशनरी इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, आपका वो पैसा डूबने लगता है। आरबीआई सुप्रीम कोर्ट अलग कह देता है कि हम 2G के लाइसेंस कैंसिल करेंगे, कोल के लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं, आपने हेवी लोन लिए हुए थे, ठीक है। और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेकर कंसर्न हो जाती है, फिर आप कहते हैं पॉलिसी प्राइस पैरालिसिस हो गया, और वो चीज़ आपका एनपीए में बदल जाती है। यही तो एनपी है। आप क्या सोचते हो कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोन लेते हो, लेकिन बाद में आप फेल हो जाते हो, वो आपका लोन एनपीए में कहलाता है। तो डेफिसिट अच्छी चीज़ है, बजाय इसके जो है वो प्रॉपर वे में हो। डेफिसिट के बगैर आप ना इकोनॉमी चला सकते हो ना असेट क्रिएट कर सकते हो। आप जनरली लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं टैक्स पेयर के पैसों से बना हुआ, ठीक है। टैक्स पेयर के पैसों से कुछ नहीं बनता, ठीक है। नोट छपते हैं आरबीआई में, कर्जा लिया जाता है बहुत ज़्यादा, लाखों करोड़ों का, ठीक है। अभी फिजिकल डेफिसिट 6.8% है, मतलब टोटल जीडीपी आपकी जितने भी $1 ट्रिलियन की जीडीपी का 6.8% आपने घाटा है आपको, मतलब कहीं से लोन लिया, कहीं लाइबिलिटी है, और उससे एसेट बनते हैं, ठीक है। टैक्स पेयर की मनी से कुछ नहीं होता। ये आप आ जाइए फिजिकल डेफिसिट पे, जो मैंने समझा दिया। लेकिन फिजिकल डेफिसिट थोड़ा एज ए रिसर्चर अगर आपको देखना हो सरकार की हालत क्या है, तो आप क्या करोगे, प्राइमरी डेफिसिट पे देखोगे। एक कंसेप्ट होता है, ये देखिए आप 15 दी रो नंबर 15, 16, 17 एंड 18, 16, 17, अच्छा 18 नहीं दी। कल ये डॉक्यूमेंट जब रिलीज हुआ था तो इसमें हिंदी वाले पार्ट में एरर थी, पता है आपको, वो पूरा ऐसा चाइनीज जैसा छप गया था। तो काफी गलतियां एरर होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, चला गया, नहीं देख पाए आप। तो आप बजट का पहला पेज जब देखेंगे तो उसके फर्स्ट पेज पर ये टर्म्स यूज है। ऐसा मत सोचिए मैं आपको फालतू पढ़ा रहा हूं, उसके फर्स्ट पेज पर ये टर्म यूज है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, वहां लिखी हुई है ये। वो नो सिग्नल बता रहा है, वरना आपको वहां दिखने को मिल जाता। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो ये सोचा गया, ये समझा गया कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो इस साल तो हुआ नहीं। जैसे मैंने बताया कि आपने कब लोन लिया होगा गवर्नमेंट ने, और उसका इंटरेस्ट पेमेंट अभी तक दे रही है सरकारें, दे रही है ना, ठीक है। तो ये सोचा गया कि आज कितना आपने किया, आज इस साल कितना डेफिसिट किया, ठीक है, इस साल आपने कितना किया। अगर आपको परफॉर्मेंस चेक करनी हो गवर्नमेंट की, तो आपको देखना है कि इस साल कितना इन्होंने किया। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ मत कीजिए, फिजिकल डेफिसिट में से आप जो इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं वो हटा दीजिए, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से जितनी भी आप इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं वो हटा दीजिए, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट बता देगा, ठीक है। हालिया आपका डेफिसिट कितना है, पुराने जो गड्ढे आप भर रहे हैं, जो पुराने कर्जे आपने लिए हैं, उसको थोड़ा सा आराम दो और कैलकुलेट करो। अब आप आ जाइए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पर। ये भी फर्स्ट पेज पर ही बजट में लिखा हुआ है, अभी वो चलेगा तो मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताइए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2011-12 में ये कंसेप्ट लाया गया। काफी अच्छा कंसेप्ट था कि अगर बजट डॉक्यूमेंट को देखना हो तो कैसे देखा जाए, वाकई में सरकार अच्छा कर रही है, नहीं कर रही है, वाकई में हम अच्छा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी फिजिकल पॉलिसी। तो उसके लिए एक और कंसेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव, और जिसको बाद में एफआरबीएम एक्ट के द्वारा जो है उसको उसमें डाल दिया गया कि हाँ इसको जो है ये इंपॉर्टेंट है। 2012-13 में इसको ऐसा किया गया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि आप उसमें से आप वो वाली चीजें हटा दीजिए जिससे जो है पूंजी संपत्ति, जो आपका कैपिटल असेट, उसका क्रिएशन हुआ।
वो आप हटा दीजिए, मतलब वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, मतलब अच्छी चीज हो गई। हाँ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये है कि आपका जो डेफिसिट था आप उसमें से आप उसको हटा दीजिए जिसका उपयोग आपने कैपिटल असेट क्रिएशन में किया। ठीक है, वो तो अच्छी चीज थी। जो घाटा आपने असेट के निर्माण में किया इस कंट्री में, वो अच्छी चीज थी। उसको हटा के देखिए आप जो है कितना ब्लंडर कर रहे हैं। तो ये हो गई कुछ टर्म्स। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आप यहां आ जाइए। अच्छा, मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई वो यहां है। रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ाया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ाया, फिस्कल डेफिसिट अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया, लेंथ में डिस्कस किया। प्राइमरी डेफिसिट इसको भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह की टर्म्स, नई नई जो टर्म्स सरकार लाती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि जब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज करे, जब वो इंटरनेशनल उसको रीडर्स भी पढ़ें, जो इंटरेस्टेड है इंडिया में, जो वर्ल्ड संस्थाएं पढ़ें, वो देख के बता दें, या रिसर्चर जो कंपेयर करना चाहते हैं इंडिया की फिस्कल हेल्थ, या अगर आईएमएफ करना चाहता है कि इंडिया को देखें यार ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो फर्स्ट पेज उसका जो पॉलिसी बजट का डॉक्यूमेंट होता है उसके फर्स्ट पेज पर ही वो ये सब दे देते हैं, ताकि आप इसको इंटरनेशनल अदर कंट्रीज से कंपेयर करें। जो रिसर्चर हैं, जो देखना चाहते हैं, वो इसको देखकर बता दें कि जो है सरकार की, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी की हेल्थ कैसी है। ठीक है, फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड दी फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अदर जो टर्म्स हैं वो इसके आसपास चलती हैं, इस मतलब वो सब्सिडरी है, हम उसको सेकेंडरी देखते हैं। जो जनरली जो डिस्कस होती है, या फाइनेंस मिनिस्टर भी, जब भी कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर जब अपना बजट रखता है तो वो फिस्कल डेफिसिट को बताता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक साल में आपने जितना भी सरकार ने जो घाटा किया, जो लायबिलिटी जनरेट की, जो उधार लिया सभी सोर्स से, ठीक है, वो इंटरनल हो, वो एक्सटर्नल हो, वो उसकी इंटरनल बोरोइंग हो, वो आरबीआई से, वो फिस्कल डेफिसिट उसका बता रही होती है। ठीक है, तो ये काफी लोगों का एक्सपेक्टेशंस थी। सबसे ज्यादा नजर फिस्कल डेफिसिट पर ही थी। ये एक अकेला इंडिकेटर है जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी सरकार की मंशा को डिफाइन कर देता है। ठीक है, तो सभी लोग काफी 7 से 8 या 9, 10 एजेंसी के अनुमान थे। बजट के पहले मैंने भी कोशिश की थी, सारी एजेंसी के लगभग मैंने अनुमान लिखे थे। सर ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं परसेंट, हाँ, ये नंबर्स के नीचे जो ब्रैकेट, हाँ, ये परसेंटेज है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है अकाउंट्स की, कि जब हम इसको क्या कहते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट अमाउंट में हम चीज़ें दिखा देते हैं, बिलियंस में, करोड़ में, है ना, थाउजेंड्स में, और जो है ब्रैकेट में हम उसको जो है परसेंटेज में हम उसको दिखाते हैं, और नीचे जो है उसको आप डिफाइन भी करते हो। ठीक है, जो भी आप टर्म, जब आप, जो लोग रिसर्च पेपर या लिखते हैं वो जानते हैं इस सारी चीज़ों को, कि आप कैसे नीचे बताते हो, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ये वो, इसका सारी चीज़ें सरकार भी ऐसा ही करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है फिस्कल डेफिसिट, और सभी की नज़र थी, जैसा कि मैं बता रहा था। ये यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ एजेंसीज 7 से 8, 10 एजेंसीज जो इंडिया के जितनी भी रिसर्च एजेंसी हैं, आरबीआई, एसबीआई है, क्रिसिल है, इकरा है, जितनी भी एजेंसीज हैं, आईसीआरए, ये सभी जो है अनुमान जारी करती हैं, है ना। जो क्रेडिट स्विस है, ये सारी अनुमान जारी करती है कि ऐसा लगता है कि सरकार जो है इतना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखने वाली है। सभी अनुमान जारी करते हैं, पूरे मार्केट की नज़र इस फिगर पे टिकी हुई होती है। ये बता देता है कि सरकार की सोच क्या है, सरकार कैसा सोचना चाह रही है, क्या होगा, क्राउडिंग आउट होगा, नहीं होगा, यह आपको फिस्कल डेफिसिट बता देता है। अब आप देखेंगे
अच्छा, इसमें भी 3 होते हैं। अब आपने बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझा दी, अब आप सीख गए हैं कि बजट को कैसे पढ़ा जाए। अब फर्स्ट जो कॉलम है वो एक्चुअल बताता है। आप देखेंगे सारी जादूगरी इसी में है, ठीक है। जितना भी जादू है अखबार का, मीडिया का, सरकार का, वो किस पर है? इन 3 से 4 कॉलम में है, ठीक है। पहला वास्तविक, एक्चुअल। एक्चुअली क्या हुआ लास्ट ईयर में, एक्चुअली क्या हुआ। लास्ट ईयर जब बजट आया था तो कुछ अनुमान अगले साल के दिए होंगे। लास्ट ईयर जब बजट आया होगा तो उसको हम कहते हैं 2021-22, जनरली हम उसको कहते हैं FY 21-22, ठीक है। FY 21-22 जब बात करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि FY 21-22 के लिए गवर्नमेंट ने क्या बजट एस्टिमेट्स रखे थे, अनुमान क्या लगाए थे। लेकिन जो अनुमान सरकार लगाती है वो होता नहीं है। सरकार चाहती है कि कम से कम खर्चा हो, ठीक है। खास तौर से अगर ये सरकार है जो चाहती है, हर सरकार की अपनी एक उसका व्यू होता है, ठीक है। कुछ लेजिस फेयर चाहती हैं कि मिनिमम इंटरवेंशन हो, ठीक है। एक अच्छी सी राय दूं आप लोगों को, ये खिड़की खोल लो जो गर्मी लग रही है। संशोधित अनुमान होते, लेकिन सरकार क्या एक अनुमान, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल जो है MG नरेगा का है। लास्ट ईयर सरकार ने कहा था कि हम 72,000 करोड़ रुपए MG नरेगा पर खर्च करेंगे, लेकिन वो जितना भी सरकार ने बताया था वो 6-7 महीने में ही, फिस्कल ईयर खत्म होने में 6 महीने 5 महीने बाकी थे और वो MG नरेगा का अलॉटमेंट खत्म हो गया था, ठीक है। तब आपको जो है अपने अनुमान को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है ना। उसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, ठीक है। अब जैसे कि पिछले साल जब बजट आया होगा तो FY 21-22 के अनुमान जारी करे थे सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में। इसी तरह से FY 22-23 के अनुमान जारी कर दिए जो कि 4th कॉलम में है। क्लियर है? क्लियर है। पिछले साल जब भी सरकार बजट लाई होगी तो उसने एक अनुमान दिया होगा कि हम सोचते हैं कि इतना जो है ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर नीचे आपको खर्चा ज़्यादा आ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। महंगाई बढ़ जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करना पड़ता है। सरकार चाहती तो यही है कि हमारा घाटा फॉर एग्जांपल 5% के अंदर अंदर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। खर्चे बढ़ जाते हैं। खास तौर से पेंडेमिक में काफ़ी अनसर्टेनिटी बढ़ गई, आप देख रहे हैं ना, ठीक है। मनरेगा की जो डिमांड जो थी वो वर्कर की काफ़ी बढ़ गई। मनरेगा का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्योंकि उसमें जो है 6 से 7 महीने में ही बजट खत्म हो गया था। जो MG नरेगा का जो अलॉटमेंट था उसके पहले 1,11,000 करोड़ था, सरकार ने कट किया था, 36% का कट किया था, 72,000 करोड़ रुपए खर्च किया था, लेकिन वो 72,000 करोड़ रुपए जो है वो जल्दी खत्म हो गए। तो मनरेगा मजदूरों को पेमेंट नहीं मिला, आप जानते हैं 30 दिन से ज़्यादा हो गए। लेट पेमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ। ऊपर से जो है एरियर काफ़ी दिन का रुका हुआ है, 17,000 करोड़ का मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था एरियर रुका हुआ है सरकार के पास। सोचिए आप, एक तो अंडर पेमेंट पे काम होता है और वो भी इतने दिनों में मिलता है। खैर वो कभी हम डिस्कस करेंगे।